ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਣ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਨੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮੜਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 2022 ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇ। SKM ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ SKM ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ SKM ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਅੱਜ SKM ਦੇ ਨਾਲ, ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ SKM ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ SKM ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ, ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ है गुरनाम सिंह चड़ून्नी प्रति। जी गुरविंदर जी, देखिए जो गुरनाम सिंह चड़ून्नी ने फैसला लिया है कि 117 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, इसकी गलबात हुई थी SKM के अंदर। SKM ने बोला था ठीक है, आपके अगर मन में विचार आया है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हो और चुनाव लड़के आप बदली कर सकते हो इस माहौल को, इस समा को, कि भाई किसानों का भला हो सके और कोई फायदा हो सके। लेकिन SKM ने पहले से घोषणा कर रखी है कि SKM में कोई राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक दल का या किसी नेता का कोई भी मतलब एंट्री नहीं होगी, उसको SKM से दूर रखा जाएगा। तो जब चड़ून्नी जी का ये फैसला हुआ तो चड़ून्नी जी को बोला अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो हम आपकी सहायता भी करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे पंजाब मिशन के अंदर, लेकिन आपको SKM से इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी उस बात पे ये बोलते हैं SKM से इस्तीफा भी नहीं देंगे। ऐसे तो कल को जो विपक्षी दल हैं वो भी खड़े हो जाएंगे कि हमारे को भी SKM के अंदर जगह दी जाए, भले ही हम चुनाव लड़ते हैं लेकिन हम भी किसानों की बात करना चाहते हैं। ये दो नावों की सवारी जो है ना SKM के अंदर नहीं हो सकती। और आज के समय पे जो चड़ून्नी जी कर रहे हैं वो 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ वो दिखा रहे हैं मैं किसानों की मांगों के लिए लड़ रहा हूं, किसानों के लिए लड़ रहा हूं। दूसरी तरफ जो उनकी एक दबी हुई कुंठा थी, इन्होंने पहले 2 बार चुनाव लड़ा है, एक बार आम आदमी पार्टी से, एक बार कांग्रेस से। दोनों बार इनको मतलब 1000-1200 वोट आई थी, इससे ज्यादा वोट नहीं आई थी। अभी जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब भी किसी को एहसास नहीं था कि आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, इतना विकराल रूप ले जाएगा ये आंदोलन।
जब आंदोलन अपने पीक पर आया, जब यह लगा कि अभी सरकार झुकने वाली है, तब जो कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा होती है भाई नेता बनने की, या भाई राजनेता बनने की, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा होती है ना, वो इच्छा धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी और सबके सामने आने लगी। फिर भी इनको बैठ के समझाया गया कि ये आपस की बातें हैं, हम इनको बैठ के दूर कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं भगवान जाने कि इनको किसने मंत्र दे रखा है या क्या दे रखा है कि नहीं चुनाव भी लड़ना है और एसकेएम का सहारा भी रखना है। अभी एसकेएम का सहारा ये क्यों रखना चाहते हैं, उसका रीजन आज मैं खुल के बताना चाहता हूं ताकि सभी के समझ में आ जाए कि भाई एसकेएम से इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अगर एसकेएम से इस्तीफा देते हैं तो उनका अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर कोई भी आज के समय पे पूरा देश, पूरी दुनिया अगर किसी का फैसला मानती है तो वो है एसकेएम का फैसला। एसकेएम से कोई भी निर्णय लिया जाता है, या कोई भी अगर लगा लो गुरनाम चढ़ूनी या राकेश टिकैत कहीं पर कुछ भी बोलते हैं ना, पर्सनल बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये एसकेएम की तरफ से है। ये एसकेएम के नाम की वजह से जो एक तरह से बोलते ना, जैसे मोदी के नाम से इतने मंत्री एमएलए बने हुए थे, एक मोदी नाम की लहर चली थी, उसी हिसाब से अब जो एसकेएम की लहर है उस लहर को साथ रखते हुए अपना चेहरा एसकेएम में भी रखना है और चुनावी फायदा भी उठाना है। वो दो नाव वाली सवारी आज के समय में गुरनाम चढ़ूनी कर रहे हैं, लेकिन इसी महीने में इस चीज का सोल्यूशन हो जाएगा। उनको आराम से बता दिया गया कि आप या तो चुनाव लड़िए या फिर एसकेएम में रहिए और किसानों की लड़ाई लड़िए। आप चुनाव लड़ते हुए किसानों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक तरफ तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान दिया था कि किसी ने इस्तीफा दिया है, अभी हम लड़ाई तो जीते नहीं, वापस चुनाव की लड़ रहे हो। अब वही बात चढ़ूनी जी पर भी लागू हो रही है। अभी हम कौन सा अपनी लड़ाई जीत गए, सरकार ने तीनों कानून वापस नहीं लिए, एमएसपी गारंटी कानून नहीं दिया, और ऊपर से 800 किसान हमारे शहीद हो गए। 800 किसानों की शहादतों के ऊपर राजनीति करना, ये जनता आज के समय में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुकी है, और इसका जवाब इनको हरियाणा से मिल भी चुका है। जगह जगह से जो विरोध उठ रहा है, या तो ये खुद ही समझ जाएंगे कि भाई ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये अपना कदम पीछे हटा लेंगे। अगर कदम पीछे नहीं हटाएंगे तो ये कदम ही के लिए एक आत्मघाती कदम होने वाला है। अभी तक जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट इन्होंने कमाई है ना, वो पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। जो लोग बोलते हैं कि भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक किसानों के लिए लड़ने वाला अच्छा नेता, हम भी मानते हैं इस चीज को, भाई सभी लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे भी लोग हैं जो कि बगैर अपना नाम कहीं आगे लाए और लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे भी जो मीडिया वाले साथी भी हैं जो अपना सब कुछ दांव पे लगा रखे आंदोलन के लिए। देखो गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता, कोई भी किसानों की न्यूज कभी टीवी में नहीं आएगी। जो साथी हैं जो सहयोग कर रहे हैं, उनका सहयोग छोटा सहयोग नहीं है। सोशल मीडिया पर किसानों की आवाज को उठाना, आंदोलन की आवाज को उठाना, छोटी छोटी बातों को ये दिखाना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें रिस्क बहुत होता है, ये सबको पता है। क्यों, इसमें अभी एक गोदी मीडिया ने एक रिपोर्ट डाली है, अभी जल्दी एक नया वो लेके आने वाले, कानून लेके आने वाले। ये जो यूट्यूबर पत्रकार है ना अपने, इन पर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया को टक्कर दी थी यूट्यूबरों ने। शायद आपको भी पता है इस चीज का, क्योंकि एक साल 26 नवंबर को पूरा एक साल हो जाएगा अपने इस आंदोलन को। आज तक पूरे एक साल के दौरान कभी भी अगर टीवी के अंदर एक बार भी कभी अच्छा दिखाया गया आंदोलन के बारे, जब भी दिखाया गया आंदोलन टूट गया है, आंदोलन दो फाड़ हो गया है। आंदोलन ऐसे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में कोई एक नेता नहीं है, किसी एक नेता के बलबूते आंदोलन नहीं चल रहा। एक तो ये जन आंदोलन है, दूसरा ये किसान से संबंधित पूरा देश रहता है, रोटी तो सभी खाते हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वो जुड़ाव उसको हटाने के लिए अभी इन लोगों ने जो सियासी पैतरा होता है ना, वो पैतरे का एक पासा फेंका था और उस पासे में चढ़ूनी जी उड़ चुके हैं। या तो ये सुलझ जाएंगे, इससे दूर हट जाएंगे कि भाई मेरे को कहीं कोई पंजाब मिशन को चुनाव नहीं लड़ना। हाँ, पंजाब मिशन करिए, यूपी मिशन करिए। हमने पंजाब और यूपी मिशन ये करना था कि बीजेपी को वोट नहीं डालना है, वो था पंजाब और यूपी मिशन, ना कि खुद अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं और चुनाव लड़ना है। ये तो इनके मन में पता नहीं कहां से आया, हो सकता है सद्बुद्धि आएगी। अभी ये समझ रहे हैं, जैसे अभी थोड़े 2-4 दिन पहले एक विवाद खड़ा हो गया था हरियाणा के अंदर कि भाई 24 और 25 तारीख को अलग अलग तारीखें रख दी थी पद यात्रा की। तो वो जब वहां पे विरोध ज्यादा हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर विरोध हो गया, कुछ साथी आवाज उठाने लगे, तो अभी चढ़ूनी ने अपना वापस ले लिया कि 25 तारीख को मैं कोई यात्रा नहीं कर रहा हूं। भगवान जल्दी इनको ये सद्बुद्धि भी देगा कि ये बोलेंगे मैं पंजाब में ना कोई चुनाव लड़ रहा हूं, ना ही कैंडिडेट उठा रहा हूं। ये भी जल्दी ही आपके सामने आएगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ जी ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ नुकसान आंदोलन ਨੂੰ हो सकता? जी देखिए, नुकसान तो होता ही है। ये आंदोलन में जो ये एसकेएम है, ये एक परिवार है, ये परिवार के मुखिया है, और हमारा परिवार पूरा देश है। हमने परिवार के 40 मुखिया बना रखे हैं कि भाई कुछ भी अच्छा बुरा होगा तो वो उसको संभाल लेंगे। लेकिन उसी परिवार का कोई मुखिया अगर अलग राही पे चलता है, अभी जैसे इन्होंने बोला कि मैं पद यात्रा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि पंजाब के जो किसान आगू हैं वो मेरी बात नहीं सुनते। नंबर एक बात, गुरनाम जी जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत आपको पंजाब के आगू दे रहे हैं, शायद इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट जो छोटे मोटे नेता है ना, वो भी नहीं देंगे आपको। उन्होंने आपको बिल्कुल सरेआम बोला था कि आप चुनाव लड़िए, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एसकेएम से इस्तीफा देना पड़ेगा। छोटी सी बात को विवाद बना के मनमुटाव रखना। अभी अपनी यात्रा, ठीक है, इन्होंने यात्रा कैंसिल कर दी, लेकिन ऊपर से इल्जाम लगा दिया कि पंजाब के आगू नहीं चाहते कि मैं ये यात्रा करूं। ऐसा है, पंजाब के आगुओं ने पहले ही बोल दिया था। यात्रा का समर्थन कौन कर रहा था? पंजाब कर रहा था। बंदे कहां से आ रहे थे? पंजाब से आ रहे थे। पंजाब के जो अपने आगू हैं, जो किसान नेता हैं, उन्होंने भी समर्थन किया था। तो एक इल्जाम लगाना और सरेआम इल्जाम लगाना, अगर लगा लो कोई मनमुटाव होता है गुरजिंदर जी, तो अपने परिवार में बैठ के बातचीत की जाती है, ना कि सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये बार बार वीडियो बना के वायरल करते हैं। क्या ये सोशल मीडिया पे नहीं करते? क्या सोशल मीडिया पे जो सरेआम करते हैं, उस लड़ाई को सरेआम करना जो शुरू किया गया था, गुरनाम सिंह चड़ूनी के द्वारा किया गया था। आज उन्होंने बोला कि पंजाब के कुछ नेता मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। हमने तो सोशल मीडिया पे एक भी वीडियो नहीं देखा किसी पंजाब के नेता ने कि भाई गुरनाम सिंह चड़ूनी के खिलाफ कोई वीडियो बनाया है। ऐसा एक भी वीडियो नहीं आया। एक जो सबसे बड़ी बात है इस आंदोलन के अंदर, इस आंदोलन में एक मैं मानता हूं किसान नेता जो सबसे बड़े नेता हैं, ना ही कभी वो सोशल मीडिया पर आते हैं, ना ही वो कोई वीडियो जारी करते हैं। जो भी बात होती है बिल्कुल निष्पक्ष रखते हैं। वो है भारतीय किसान यूनियन उग्रहा एकता के प्रधान सूबे जो अपने जोगिंदर सिंह उग्रहा जी हैं। उन्होंने भी ये बात बिल्कुल एसकेएम के अंदर बोली थी कि गुरनाम जी, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप चुनाव लड़िए, लेकिन उस चुनाव जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको एसकेएम में उसको शामिल मत कीजिए, क्योंकि एसकेएम का कोई भी नेता, कोई भी आगू ना तो किसी पार्टी का समर्थन करता है और ना ही चुनाव लड़ना। हाँ, चुनाव लड़िए आप, पहले इस लड़ाई को जीतने के बाद, इस लड़ाई को जीतने के बाद आप चुनाव लड़िए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप बोल रहे असर, अभी असर के ऊपर आते हैं। इसका असर बहुत पड़ता है, क्योंकि कुछ हमारे जो साथी हैं हरियाणा के, तकरीबन हरियाणा वाले साथी हैं, उन्होंने तकरीबन जो टीवी होता है वो देखना छोड़ दिया, वो सोशल मीडिया पर ही रहते हैं। तो सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो आता है, अगर एक छोटा सा वीडियो आता है, वो बहुत इफेक्ट डालता है। उस वीडियो के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होती है। अगर ये वीडियो डालेंगे कि भाई मेरे को चुनाव लड़ना है या यात्रा करनी है, उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा होती है, उसमें 5 आदमी अगर ठीक बोलेंगे, 5 गलत भी बोलेंगे, लेकिन वो असर तो आता है ना। वो असर कहां पे आता है? वो असर आता है आंदोलन के ऊपर, वो असर आता है हमारे मुद्दों के ऊपर, क्योंकि फिर मुद्दों की जो चर्चा होती है वो खत्म हो जाती है। अब लोग जो पहले जागरूक हो गए थे, अभी उसमें देखने में आ रहा है बहुत फर्क है। अभी आप अगर बॉर्डर के ऊपर जाओगे तो बहुत कम नफरी है। भाई अभी गेहूं की बुआई का समय है तो लोग बुआई में लगे हुए हैं, लेकिन तकरीबन 70-80% तक गेहूं की बुआई हो गई है। 20% वहां पे रुकी है जहां पर पानी खड़ा हो गया था। अब हमने जो एसकेएम बना रखा है, वो एसकेएम इसलिए नहीं था, एसकेएम ने खुद बोला है कि ये ना समझे दुनिया कि हम सिर्फ 3 काले कानून और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बैठे हैं। और भी जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको भी साथ के साथ उठाया जाएगा और सरकार को इसके बारे में चेताया जाएगा। इसका असर अगर आपको देखने को मिला हो, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, बिल्कुल वो इन्हीं की देन है। जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, ये एसकेएम की मेहनत का नतीजा, इन सभी जन आंदोलन का नतीजा है, जो जगह जगह पे उपचुनाव हुए थे और जिसमें बीजेपी हारी है। कुछ साथी हमारे हरियाणा से भी, उनसे भी एक अपील है, रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो डालते हैं ना, कुछ बड़ा होना चाहिए। आप ये देखिए गुरजिंदर जी, 1 साल से हम रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे आगू भी बैठे हुए हैं। 1 साल से रोड के ऊपर इतनी शांतिपूर्वक आपने आज तक कभी सुना था? देखा तो बहुत दूर की बात, कभी सुना भी नहीं होगा कि 1 साल तक इतना बड़ा आंदोलन रोड के ऊपर बैठा है, कहीं पर कोई हिंसा नहीं, कोई वो नहीं है, और उसको संभाल के रखना आप उनकी भी जिम्मेवारी समझिए। हम सवाल कर सकते हैं, चलो सवाल करना सबका अधिकार है,
लेकिन एक इल्जाम लगा देना, अभी चढ़ूनी जी ना तो सवाल करे, चढ़ूनी जी लगा रहे हैं इल्जाम कि पंजाब के जो आगू हैं वो मेरे को बार बार रोक रहे हैं, मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है और निराधार इल्जाम लगाया उन्होंने। ऐसा इल्जाम लगाना हम नहीं समझते कहीं से भी कुछ भी ठीक होगा। ऐसे तो फिर सवाल खड़े होंगे तो सवाल इन पर बहुत ज्यादा खड़े होते जाएंगे। उसके बाद फिर बिखराव आएगा, उस बिखराव को रोकने के लिए एसकेएम ने एक अपील की है, 20 तारीख को मीटिंग करेंगे और वहां पर बैठ के सभी मुद्दों पर बात करेंगे, ताकि जो ये बिखराव नजर आ रहा है, आपने भी देखा होगा बहुत सी जगह से बातें आती हैं, आप तो मीडिया से संबंधित हो भाई, जगह जगह से बात आती है, आंदोलन बिखराव में आ चुका है, नेताओं के आपस में नहीं बनती है। ये जो वीडियो जारी होते हैं ना, लोग कुछ ना कुछ अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान लगा लेते हैं इनमें बिखराव है, एक ने 24 कर दिया, एक ने 25 कर दिया, लेकिन चलो वो मुद्दा शोल हो गया भाई, एक ही तारीख रहेगी, 24 तारीख को जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। उस मुद्दे, अब ये मुद्दा बचा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव लड़ने वाला है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। अब उस मुद्दे को सोल्व किया जाएगा 20 तारीख को। अगर इन्होंने चुनाव लड़ना है तो इनको एसकेएम से इस्तीफा देना पड़ेगा और ये बिल्कुल जायज मांग है। ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਚੋਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲੜਾਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ ਕੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ कि संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम तो फिर बाहर होंगे गुरनाम सिंह चड़ूनी? अगर देखो जो ये रवैया अपना रहे हैं, एक अड़ियल टाइप का रवैया अपनाया है इन्होंने कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, अपने कैंडिडेट उतार रहा हूं, बात तो वही आती है। अभी जो कांग्रेस है, बीजेपी जो पार्टियां बनी हुई हैं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है या प्रधानमंत्री का चेहरा, तो वो एक ही जगह पे चुनाव लड़ सकता है, वो इसकी इच्छा है कि चुनाव लड़ना चाहता है, नहीं लड़ना चाहता, लेकिन कैंडिडेट तो अपने नाम से उतार रहे हैं, कैंडिडेट गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नाम से उतरेंगे, कैंडिडेट तो फिर वो एसकेएम की तरफ से हो गए ना, और एसकेएम ने क्लियर किया है कि हम अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, तो फिर तो ये बात वहीं पे आएगी, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर ये फिर भी नहीं मानते हैं कि भाई नहीं मैं तो अपने कैंडिडेट उतारूंगा, अभी 20 तारीख को इस बारे में विचार विमर्श होगा, उसके ऊपर चर्चा चलेगी, या तो ये स्पष्ट कर दें कि मेरे को चुनाव भाई मैं खुद नहीं लड़ रहा, मैं अपने कैंडिडेट उतार रहा हूं, तो मैं उससे अपना कदम वापस ले रहा हूं, कदम वापस ले रहे हैं, उसका हम सभी स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बहुत अच्छे और सुलझे हुए नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर वो चुनाव में बिजी हो जाएंगे तो फिर जो हरियाणा की तरफ से एक ही आगू जो बोल रहे हैं, एक वैसे तो हरियाणा की तरफ से 4-5 आगू दे रखे हैं, लेकिन उन्होंने भी सर्वसम्मति से बनाया था कि ठीक हमारी मांग को गुरनाम सिंह चढ़ूनी रखेंगे एसकेएम के अंदर या कहीं पर भी जहां पर भी रखते हैं। लेकिन अब अगर वो चुनाव पे अपना ध्यान रखेंगे, कैंडिडेट उतारेंगे, तो इनको वोट मांगने भी जाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कैंडिडेट उतार दिया, उनको देखेंगे नहीं, फिर वोट कहां से आएंगे? वोट मांगने तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अब एक बात हम बोलते हैं कि भाई मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं गुरविंदर सिंह को चुनाव में उतार रहा हूं, अब गुरविंदर सिंह चुनाव में उतरेगा तो गुरविंदर सिंह ये तो बोलेगा भाई दीपक मेरे लिए वोट तो मांगनी पड़ेगी। अगर दीपक बीच में नहीं आएगा तो फिर वो कैंडिडेट किसका है? अगर कैंडिडेट उतारा तो उसको वोट तो मांगने पड़ेंगे ना। ये एक छोटा सा लॉजिक है, इतना बड़ा भी नहीं है, इसको 20 तारीख को तकरीबन दूर कर दिया जाएगा। या तो भाई अगर आपने कैंडिडेट उतारे तो आप वोट मांगने जाओगे, हो सकता है इसके बीच में अगर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ जाए कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है किसान नेताओं से, फिर बातचीत के लिए जाने के लिए आप पंजाब में चुनाव लड़वाओगे बंदों को, या बातचीत के लिए सरकार के पास जाओगे, तब उसका क्या होगा? उस सब के बीच में हमारा जो मेन लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है 3 काले कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून। पहले इस लड़ाई को जीतने के बाद, उसके बाद आप कैंडिडेट उतारो या खुद चुनाव लड़ो, सभी मिलके आपकी मदद करेंगे। ये एसकेएम का कहना है। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 22 ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਆਖਰ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।